चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। Hello everyone, welcome to another episode of, and I hope you liked the intro. That सबको एक बहुत क्लासिक गाना तो याद ही होगा, राइट ऋषभ? एक गरम चाय की अनु मलिक प्याली हो। अनु मलिक साहब ने एक ही गाना दिया है बढ़िया हमें इंडस्ट्री को तो सबको पसंद आना ही चाहिए। सबसे Yes. फेमस है यार वो। बस सारी डिस्क्रिमिनेशन हटाता है भाई, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये होना चाहिए, एटीट्यूड यही रखना चाहिए, और चाय तो हमेशा होगी साथ में। So Yes. welcome. और सलमान भाई का Yes, गाना है, गलत ही क्या हो सकता है। exactly. सलमान भाई की जिंदगी में ना सलमान भाई के अलावा सब सही है, हाँ सिर्फ ये वही भी बात गलत है। So welcome again to another fresh episode of Confused. Today we have so many topics to talk about. But before इसने कितना एप्टली फ्रेश का यूज किया है, फ्रेश वर्ड का यूज किया है। इसको आपको बाद में समझ में आएगा। we are trying to provide you as fresh as content possible. So if you will notice that I'm going to use the word fresh very often. Okay. Okay. But coming to the main topic today, so guys, मैंने एक बहुत interesting topic पढ़ा था, उसका एक वीडियो देखी थी मैंने। तो it is basically called Pygmalion effect. Okay. तो एक लेमन टर्म में उसको नाम दिया जाता है cause and effect. Okay. And it says that for every behavioral cause, there is a behavioral effect. Right. Yeah. So without giving any understanding of what any context, so खाली नाम से cause and effect, like what is coming into your mind कि cause and effect से क्या हो सकता है? किसने पढ़ा है cause and effect के बारे में? कुछ एक कॉज होगा जिससे एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक इफेक्ट होगा उसका। हर कॉज का एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। Okay, is it like the Newton's law that for every action there's an equal and opposite reaction? Yes. Does it resemble that? Yeah, kind of. बट यहाँ पे रिएक्शन बहुत विविड होता है। आप उस पे इक्वल एंड अपोजिट नहीं होता, हाँ, right, एंड अपोजिट नहीं होता, बाकी बस होता है रिएक्शन। एक छोटे से कॉज का बड़ा इफेक्ट भी हो सकता है, बहुत ज्यादा। बटरफ्लाई इफेक्ट देख लो, सबसे बड़ा कॉज एंड इफेक्ट का मेरे को ये एग्जांपल लगता है। तो मैं एक छोटा सा फ्लैपर ऑफ अ विंग कहाँ टेक्सास में वो टोर्नेडो लेके आता है। तो शायद हमारी इतनी है फिलहाल तो नॉलेज। Okay, so basically what I read was कि हम एक में तो basically behavior consists of a lot of things. Right, okay, right. Behavior can be like a happy, a sad, a attractive behavior. Okay, so in talking about just behavior में आप किसी को influence भी कर सकते हो, exactly, Yeah. because of your behavior. Yeah. Okay, so coming in that context, जैसे कि एग्जांपल लूं मैं कि एक लड़का है, वो एक अफेक्टिव और एक अट्रैक्टिव बिहेवियर प्रोजेक्ट करता है सामने किसी एक लड़की के ऊपर। ओके, सो गिवन द स्टेट, ये अकेला नहीं है, देयर आर मेनी गाइज who feel that same level of affection and attractive toward that girl. All right. Okay, so this is a behavioral cause that it is being projected to the girl. Okay, the behavioral effect to that is that the girl feels very self-confident. Right. The girl gets the gist, okay, that she might be actually good looking. She might have that good personality traits as well, that people are not just attracted, they are affected also. Right. They have affection towards her. Okay. Right. So because of this, girl has a behavioral effect on her. Okay. So this cause and effect is a circle. Okay. Right. So now, why is it a circle is because the girl is going to give behavioral effect. Okay. So वो behavioral effect towards society होगा. Right. Okay. Towards society कैसे होगा कि now she is very self-confident about herself. Okay. So she will project that behavior towards society. Like she will be very good going. She will like try to socialize more. ठीक है? So if you understand why is it a circle, is because like when we started with the boy, okay, she had a behavioral cause that the girl was very good going, the girl was very socially friendly, exactly.
Yeah. So that intended to create a cause on the boy itself कि okay, these are the good personality traits. Okay, तो बेसिकली समझ रहे हो ना कि सोसाइटी की वजह से you get an effect and you try and you create a cause and effect that on the society as well. तो एक सर्कल चलता है. Isn't it only Okay. the half circle you're talking about? Like full circle will be the girl getting so much self-confident that she ends up rejecting all the guys, and because of that, she is no longer getting affections, and then she turns out to be, because of that lack of affection, she is getting, But lack of self-confidence again, and then it goes on in circle again and again and again. बट शालिका वो तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, कॉज एंड इफेक्ट आई थिंक सो. ये Well, श्रेयस, इसका मैं टाइम के आंसर साथ दूं होता है, हाँ, यहाँ पे टाइम पे time हर चीज में कंसिडर होता ही है. yes, time is a role, but see, cause and effect can be both positive as well as negative. Okay, Right. तो जैसे अगर हम एक बात करें तो इज अ सर्कल, तो सर्कल में देयर आर टू डायरेक्शंस लाइक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो from the behavioral concept we consider that if it is a positive circle, Yeah. it is if it is a positive behavioral cause and effect, okay, Yeah. तो सर्कल continuously clockwise direction में चलता है. Okay. Okay, Yeah. when there is a negative impact because of a cause, Okay. there's a negative effect, we consider that the circle start going into a anti-clockwise direction. That is what is the basic ideology that has been shared in that video. तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा from the curious point कि हम बहुत छोटी सी, जैसे ऋषभ ने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बताया, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं. Right. The biggest example is social media. Social media कहीं ना कहीं हमको एक behavioral cause देता है. तुम्हारे अच्छा, तो एक और एग्जांपल ध्यान में आता है कि अगर हमारे समाज, हमारी सोसाइटी कुछ नीचे वर्गीय लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, उन्हें भूख लगेगा, वो वाले जाके चोरी करेंगे अपर क्लास से, अपर क्लास वाले कंप्लेन करेंगे, गवर्नमेंट इन्हें जुडिशियल सिस्टम के तहत इन्हें जेल में डालेगी, उन्हें सजा देगी और उनके टैक्स पेइंग पैसा यहाँ पे खर्च करेगी. फिर जब वो वापस बाहर आएंगे और वापस सोसाइटी से पैसा या फिर खाना मांगेंगे तो वो बोलेंगे तुम्हारे कन्विक्शन में सारा पैसा खर्च हो गया इसलिए तुम्हें खाना नहीं दे पा रहे हैं, एंड देन दे गो टू अनदर क्रिमिनोलॉजी. तो इस तरह की सर्कल हमेशा चलते रहता है, एक कॉज से दूसरा इफेक्ट हो रहा है और हम इसी सोसाइटी में फंस. Okay, so like what cause and effect like we told you. So इसमें एक point like I told you, behavior तो कहाँ also से शुरू होता है, consists कहाँ of से खत्म होता है, ये influencing सर्कल वाले someone. प्रॉब्लम से है. Okay, वी नेवर नो so हम कहाँ से घुस सकते we will हैं. try to इसी- influence you over a topic. So अगर आपने हमारा thumbnail देखा होगा, today हाँ. we are going to talk about on chai. Chai. So chai is like favorite to many of the people. My own parents drink like 6 हाँ, cup of in a day. Right. इतना फेवरेट है दुनिया का कि सेकंड मोस्ट Water. फेवरेट कंज्यूमेबल बेवरेज Drum rolls. एंड फर्स्ट इज एंड Basically, the favorite, the most consumable drink before tea is water. Right. Because water हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए. That is why I think कि भाई water तो जरूरी है. Water it can चाय not be बनाने like के लिए पानी stop चाहिए, drinking. चाय बनाने के लिए पानी चाहिए आपको. Yes, exactly. रीजंस मत दे. हाँ तो होगा ही ना. अरे इसको देखो ये रीजन दे रहा है हमें पानी पीने क्यों So, नंबर 1 coming- कंज्यूमेबल हुआ है बेवरेज. ठीक है So, भाई. We have a वही lot तो of रीजन क्यों दे trivia रहा facts है. about tea with us. ये हो सकता है कि किसी ने सुने हो या ना सुने हो. नहीं सुने हो तो that is very very good for us. We're providing you some new trivia. So who's gonna start? Rishabh? Yes. मैं अगर शुरू करूं तो बिगिनिंग से ही शुरू करते हैं भाई, क्योंकि हर कहानी की शुरुआत कहीं से शुरुआती होती है. Yay. तो कि भाई साहब की शुरुआत कहाँ से हुई? आवर फेवरेट प्लेस राइट नाउ, चाइना. तो हमें देखने को मिलेगा कि चाइना से वायरस बनाने में वो नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, या फिर उनका दिमाग नहीं चलता. उनके कभी कभी ऐसी लाजवाब या फिर लजीज चीज भी बन जाती है. तो यहाँ हुआ कि शुंग डायनेस्टी थी, लाइक अबाउट 3000 BC के अराउंड. उनके जब सोल्जर्स ऐसे वॉर के दौरान गर्म पानी कर रहे थे तो गलती से कोई बगल की बुश से 2-4 पत्ते उनके गिर के उनके गर्म पानी में गिर गया होगा. जब उन्होंने उससे पिया तो उन्हें रात में नींद नहीं आई. इससे पता चला कि भाई, और अच्छा भी लगा उन्हें, उन्होंने फेंका भी नहीं, अपने राजा के पास ले गए. तो उन्होंने इसका ध्यान देना किया और तब से ये ऐसे शुरू थी, ऐसे काइंड ऑफ ये इन्वेंशन कहो या डिस्कवरी कहो,
उन्होंने स्टार्ट किया। एक तो वन ऑफ द स्टोरी ये है, पर जापान में थोड़ा सा इसका स्लाइटली डिफरेंट वर्जन है। स्लाइटली डिफरेंट इतना वर्जन है कि वो ये मानते हैं कि एक इंडियन सेंट है बुद्धा रामा करके, वो गए थे जब चाइना अपने बौद्ध धर्म को फैलाने, तो वहां पे वो सोना नहीं चाहते थे। तो सोना नहीं चाहते तो उन्होंने अपने आईलिड्स काट दिए, और आईलिड्स काट के वहीं पे जमीन पे फेंक दिए, तो जमीन ने आईलिड्स को टी बुशेस में Yeah, it's निकाला। और टी हेल्प यू रिफ्रेशिंग, और आपको नींद नहीं आती तो ऐसा कुछ। ये तो ऑब्वियसली लेजेंड और मिथ है। तो ये दो चीजें ऐसे, क्या ना, इसका इनिशियल पॉइंट था जो लोगों ने ऐसे मान लिया। हम सच्चाई में कह नहीं सकते कि 3000 But BC like क्या होगा होगा, बस हम what मान I've सकते हैं read कि on चलो the ऐसे internet ऐसे that चाय tea की has been डिस्कवरी around हुई for a थी और very हम long आगे time. इसके yeah, it has been बढ़े। Tea, love खैर, since 2737 BC. yes. So tea. So tea basically एक not just beverage है, it has become a हाँ तो part of the थ्री culture थ्री as well. थाउजेंड मेडिसिनल यूज में भी है टी बहुत का। सारी, हाँ तो बहुत सारे कंट्रीज में टी इज नॉट जस्ट अ बेवरेज, वहां पे दे ट्राई टू इंक्लूड इट इन देयर रिचुअल्स, लाइक Right, इफ यू कंसिडर right, जापान, right. Japan has a whole big history with tea and they involve like उनका जो टी का प्रिपरेशन होता है, हम लोग अपने एनिमेज अपने शोज में देखते हैं कि वो टी को कितना टी सोफिस्टिकेटेडली बनाते सेरेमनी हैं। कहते हैं उसे। ओके, Tea ceremony. हाँ, they have proper tea ceremony वगैरह। तो it shows that there is a lot of history behind tea, but like हम लोग एक थोड़ा पर्सनल बात करते हैं कि अगर जैसे शालिका वो मानते हैं, शालिका will won't defend tea at all, Yeah, और शालिका is a hardcore coffee lover। obviously. शालिका को जब मिला होगा वो हमेशा हमेशा कॉफी पीती है। Right. तो like for a person who doesn't drink tea too often और बिल्कुल भी नहीं पीता है, Hmm. like what is the point, what is the standpoint on tea, like what is your like concept or thought behind tea? See, people liking tea or liking coffee can have a lot of different pointers under it. For example, tea is always considered as a really, relaxing beverage. जब तुम मतलब बोलते हैं कि after a very hectic day when you go home and you drink tea, it's that kind of a beverage. But for coffee, you drink it while you're working, while you need energy, and it's associated more with the corporate world nowadays. So it's totally fine if somebody likes to be relaxed all day, उनको सोना पसंद है ज्यादा, तो सही बात है, but no, I prefer coffee over tea anytime, because after a point of time ऐसा आता है that coffee has no effect on your mind also, and then you anyway sleep even after drinking coffee. So तो वो सेम that's चीज टी के साथ भी होती है या नहीं, मतलब tea के साथ हाँ coffee टी के beans से, साथ होती right, है, बिकॉज मैंने पढ़ा था। right. तो कैफीन की मात्रा टी लीफ में ज्यादा होती है कॉफी बीन से। बट सिंस कॉफीज आर कॉन्सेंट्रेटेड ड्रिंक, तो इसलिए उसका इफेक्ट कम होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा टी मिलाएंगे, अगर मान लो सेम जितने हम कॉफी मिलाते हैं उतना ही हम टी मिलाएंगे ना, तो फिर टी का ज्यादा होता है इफेक्ट, कॉफी से भी ज्यादा होगा। लेकिन वो ज्यादा फिर टेस्ट खराब कर देगा, इसलिए हम ज्यादा Okay. मिलाते नहीं है। तो तो बैलेंस थोड़ा सा इसलिए होता है, मैं वो एक्चुअली concentrated है अब और ये जैसे जरा हमने भी dilute में आता है। जापान चाइना की बात That's कर the ली, टी के कल्चर difference. में लेके इंडिया के कल्चर की बात करते हैं कि इंडिया पे कैसे आई है टी, क्योंकि मोदी जी ने एंडोर्समेंट बहुत अच्छा किया है चाय का। तो मजाक नहीं इस टॉपिक पे। देखो हाँ, इसके साथ मतलब मजाक भी नहीं, हाँ। मजाक वाली तो बात नहीं है। हाँ। बात बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं बताई। उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई चाय से रिलेटेड, लेकिन चाय की हिस्ट्री कभी नहीं बताई। तो हम जरा कोशिश करते हैं। हुआ ये कि अभी ब्रिटिश टी इज माना जाता है, सेलिब्रेटेड एज अ ब्रिटिश ड्रिंक ना। इवनिंग टी का जो फेनोमेना आया है, हाँ ब्रिटिश टी मानते हैं लोग पूरे से वर्ल्ड में, जो फेमस की ब्रिटिश ही ड्रिंक होती है टी। एंड द इवनिंग टी केम फ्रॉम देयर। वहां पे उनके जब लुइस वहां के जब एक राजा थे 1600 BC में, तब हॉलैंड की प्रिंसेस से शादी हुई थी और उनके सेरेमनी में पहली बार को टी पिलाया गया था। तो ये भी नहीं है कि यूरोप में टी इंग्लैंड पे आया था, यूरोप में पहले टी हॉलैंड से आया था और वहां के उनके सेरेमनी की शादी में वो टी पिलाया था। वो इसलिए पता है इसका इसलिए मतलब तो, ताकि जो लोग गेस्ट आए थे ना उनको ज्यादा खाना ना खिलाना पड़े, बिकॉज टी आपका भूख मारता है।
तो उनका आइडिया ये था कि उन्हें चाय हाँ पिला के उन्हें कम खाना खिलवाओ, क्योंकि स्टिल है तो वो ब्रिटिश और ये तो है नीदरलैंड, उनकी उतनी बनती नहीं थी शुरुआत से ही। तो हाँ, तो ये भूख मारने की पर टेक्निक ना एक वो रॉयल्टी में मुझ एक आ गई, मतलब है ना, समाज में एक आ जाता है, कुछ ना कुछ एक कल्चर एक से दो बार होता है, तो वो इवनिंग टी में हम मानते हैं, और आप कहीं राइट, भी सो एयरप्लेन में मेरे को जाओ, आप तुमने राजधानी में भी जाओगे व्हाट तो यू आर शाम के 4 सेइंग बजे कि आपको उन्होंने वो टी के नाम भूख पे मिटाने के बिस्किट और लिए चाय उनको जरूर चाय दे मिलेगी। दी थी, बट तो एज फार एज आई तो नो कि इंग्लैंड में बिफोर टी वाज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल बेवरेज, इट वाज कंसिडर्ड मेडिसिनल, एंड ये बोला जाता था कि टी इज डेंजरस बिकॉज इट हीट्स अप द इंटायर एंड सॉरी द इंटीरियर्स ऑफ योर बॉडी, एंड देन ड्रिंकिंग मोर ऑफ इट कैन कॉज यू डेथ। तो कहीं उनको मारने के लिए तो नहीं पिलाया था, लाइक हो सकता। नहीं नहीं नहीं, उसकी भी राइट। अच्छी बहुत स्टोरी है, क्योंकि ये चाइना से आया था, और 16th सेंचुरी में यूरोप और चाइना के बीच ओपियम वॉर चलता था। मतलब यहाँ पे ब्रिटिश एक नंबर वन थे जो ओपियम उगाते थे, दूसरे चाइना थे जो ओपियम उगाते थे, लेकिन वहां से टी की भी जो सप्लाई होती थी उससे उनका फ्लरिश हो रहा था इकोनॉमी। अब ब्रिटिशर्स भी ज्यादा मेजर कॉलोनी तो सारे ब्रिटिशर्स के अंडर ही थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उनकी जो हाँ। टी आती थी उनको ये सब बोल के कि उससे मौत होती है या फिर उसमें राइट। खराबी है, कि अपने इंडिया में, असम में और दार्जिलिंग में उगाना शुरू किया, और वो बेटर टी लिव्स आती हैं, अभी भी मानते हैं लोग कि वहां से बेटर टी हमारी होती है, और इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया का प्रोडक्ट बना के पहले इंडिया में बेचा और फिर इसको बाहर एक्सपोर्ट करने लग गए, और इतना एक्सपोर्ट किया कि इन चाइना और ब्रिटिश के बीच वॉर होना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश ने चाइना को हरा दिया था, एंड लेटर ऑन या सिर्फ ब्रिटिश ही टी कंपनी रह गई थी, मतलब पूरे एक टाइम में ऐसा आया कि वो इतना ज्यादा टैक्स इससे ले रहे थे कि अमेरिका के बीच में एक बार मैनहट्टन में एक इंसिडेंट भी हुआ था, जहां पे उन्होंने How tea चार is सौ bad? शिप्स ऑफ टी 400 उन्होंने ships of वो कर दिए थे, मतलब उन्हें उड़ा दिए थे पूरे, ताकि उनको भरना ना पड़े, उनको बेचना ना पड़े। नो, अरे मैं पूछ रही हूँ कितना ज्यादा स्मगल चाय है वो, स्मगल कर मतलब रहे थे ना वो, 400 उसके शिप में स्मगल चाय करके भर उनके के नाम पे आएंगे, टैक्स इवेक्ट कर रहे थे कहाँ से अमेरिकन से, आएंगे? Like तो वहां पे it उन्होंने clearly shows कि like how fondly people are हाँ for tea. हाँ पॉपुलर भी है, so basic तो this just shows कि tea has such a long history. राइट। इतना पॉपुलर। टी के अराउंड इतना पॉलिटिक्स, इतना मतलब it has a lot of political background as well. Like I somewhere read that in some cases, like in American Revolution, the signing of some treaty was done while drinking the tea. Like they told that okay हम चाय पियेंगे उसके बाद ट्रीटी साइन करेंगे बेसिकली ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन, बट लाइक दिस इज लाइक टॉकिंग इन लाइक पॉलिटिकल और बहुत लाइक डॉक्यूमेंटेड सेंस। व्हाट आई वांट टू नो कि टी इज लाइक अ वेरी पर्सनल बेवरेज, जैसे कि लोग देखते हैं कि फैमिलीज मीट टुगेदर एंड हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, यंग पीपल में देयर इज ऑलवेज दैट चाय चाय एंड सुट्टा, राइट? राइट। Yeah. Chai Chai, and chai sutta. and sutta go. Chai and sutta go to so well. Like I हाँ remember हाँ in my college days कि भाई क्लास जाना हो ना जाना हो, पर सबसे पहले चाय और रोज सुट्टा जरूर, चाय सुट्टा जरूरी होता है। Okay, so tea also पहले has a very like a चाय personal सकते background कि people spend like हैं। time talking। हम लोग देखते हैं कि चाय के जैसे बारिश होती है हैं, तो लोग उसे बोलते हैं कि यार पकोड़े, चाय पकोड़े हो जाए। तो लाइक चाय यूजुअली गोज विद एवरीथिंग। चाय ओके, पकौड़े। लाइक एट चाय का मैंने जैसे मेरे को डाउट है कि चाय का एडिक्शन होता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल होता है, एक हाँ 100% है, हाँ। why do you think your mom and dad drink 6 cup of tea a day? That is because their body needs it, and पहले उन्होंने obviously they might have started from like 1 or 2 cups a day, but then as in when you go about your life, your body gets adapted to the amount of tea that you're taking, or caffeine basically takes to the amount of caffeine that you're taking. It's similar to coffee, and then after a point of time, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है टू द सेम अमाउंट ऑफ टी और कैफीन दैट यू आर टेकिंग, तो तुम्हारी बॉडी को वही लेवल का सेटिस्फैक्शन अचीव करने के लिए रिक्वायर्स मोर टी, सो इट गोज ऑन एंड गोज ऑन गोज ऑन लाइक दैट। Yeah. और एक हफ्ते में अगर आप 5 लीटर से ज्यादा चाय पियोगे तो यू विल गेट फ्लोरेसेस इन योर बोन्स एंड योर टीथ। तो
लिमिट में, But ठीक है। तो like अच्छा है जैसे चाय मेरे सुट्टा दिन पास में एक बार like चलता है, उससे ज्यादा नहीं, 5 लीटर myself से तो don't कम ही drink tea, रखना है इसको। but I Yeah. have friends like who are crazy for tea. So I have मैंने लोगों को टी चाय के पीछे भागते देखा. Like I remember like me and my friends are partying out like after 11 at the night. ठीक है, तो अब भाई पार्टी वार्टी हो गई है. Now everyone is craving for a cup of tea. Right. So I remember that me and two of my friends tripling on a scooty at 11 in the night, and we are trying to look for a tea vendor कि रात को 11 बजे बस कोई चाय पिला दे. मिल ठीक है, जाती है. तो जो दिल्ली में लोग होंगे उनको पता होगा कि एम्स के पास एक स्पॉट है Right. जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी रात चाय मिलती है. So I Mm-hmm. remember like रात के ठंड के हाँ, समय 3 लोग स्कूटी पे भाई कप चाय करते भाई। कपाते हुए एम्स पहुंच रहे हैं कि भाई चाय पीनी है, जिसमें मैं तो चाय पीता भी नहीं हूँ. So एम्स पहुंच गए। cause I was the one who was driving the तू scooty. गया क्यों था? मतलब तू ट्रिपलिंग I am करने गया supporting the क्यों था? फिर addictive ये nature of बता, tea. दोस्तों के रात के साथ। 11 बजे भी चाय पीनी है इन लोगों को. अच्छा अच्छा, चाय के चक्कर में ट्रिपलिंग Exactly. करवा दी भाई, ये तो सीधे सीधे. हाँ. तो कॉज एंड इफेक्ट और देख वो भी तेरे ऊपर आया है, and उनका this कॉज था was तेरे like पे in the इफेक्ट winter आया। season, so you can imagine in Delhi it would be like around 8 or 9 हाँ, degrees Celsius. So No, you no, get तो हाँ Mm. तो रात की तो चाय has always been in some or other way connected to like in socializing people. खाली दारू और इससे socializing नहीं होती है. Like even in the youngsters, or not just in youngsters, especially more हमारे जो हमसे जो पहली वाली generation थी, for them tea has always been one of the most consumed beverages. Right. But like मैं हाँ मतलब उनका एक yes पार्ट ऑफ लाइफ था, सुबह उठ के चाय, फिर एक बार ऑफिस में चाय, और बस शाम को जब आते हैं तो बीवी के हाथों का एक एक कप चाय। तो वहाँ पे 3 अलग अलग तरह की, एक टपरी पे चाय पियेंगे, दूसरा एक बार मैडम के हाथों की चाय पियेंगे, और शाम को आके अपनी बीवी के हाथ पियेंगे। तो ऐसा उनका तीनों टेस्ट चलते रहता है। तो ये ऐसा है, हमें भी शायद थोड़ा बहुत कहीं पे आया है ये कि चाय पीने की आदत। हर चाहे बचपन जगह में आप कितना भी चाय रेजिस्ट का, करें, टी अब का बड़े हो अपना जाते एक हो तो एक कल्चर बार ना, हाँ, चाय कहीं भी सुट्टे नहीं के नाम होती पे है. ही मार लोगे, लेकिन चाय पीना इज तो लाइक उतना मना नहीं कर पाता। हाँ, मेरे को एक बहुत ही अच्छा इसमें स्टोरी है, वो आयरलैंड के, मतलब आयरलैंड में अगर लोग मिलते हैं और चाय पीने की अगर बात आती है तो ऐसे करते हैं। कौन तो पहली बार इतने एमिएबल होते हैं वो कि पहले फोन करके पता कर लेंगे आप हो नहीं अवेलेबल हो, आप बात कर सकते हो। फिर वो घर जाते हैं, जब वो घर पहुंचते हो गए तो होस्ट उनसे पूछता है, डू यू वांट अ कप ऑफ टी, एंड दे से पोलाइटली नो सर आई एम गुड। और फिर बोलते हैं आर यू श्योर यूज करते हैं, आर यू श्योर। तो बोलते हैं या आई एम प्रीटी श्योर आई एम कंफर्टेबल विथ योर presence, I'm very grateful that you invited me to your house। वो थोड़ी देर कन्वर्स करता है, फिर बोलते हैं कि होस्ट होता है, फिर वो बोलता है कि आई एम मेकिंग टी एनीवेज फॉर माई सेल्फ, सो इट इज नो ट्रबल इफ आई मेक फॉर यू। तो वो जो गेस्ट होता है वो बोलता है ओके सर यू आर सो गुड, आई विल हेल्प यू इन द किचन। और फिर दोनों किचन में आते हैं और प्यार से चाय बना के पीते हुए बात करते हैं। ये होता है आयरलैंड का कल्चर। इंडिया में 2 चीजें कभी भी टपक सकती है, एक है प्रॉब्लम और दूसरा है गेस्ट। तो आपको पता होगा आपको पता होगा कि यहाँ पे कल्चर नहीं है वो फोन वोन करने का, भी सीधा आते हैं ओ भाई कैसा है और घुसते हैं और फिर भाभी जी एक चाय हो जाए कप गर्मा गर्म, और फिर भाभी जी चाय बना के लाती है और ये लोग एंजॉय करते हैं। अमेरिका का मैंने सुना वहां पे कैसे होता है, किसी ने बोला डू वांट अ कप ऑफ टी और इसने नो बोल दिया तो बोलते हैं जा भाड़ में वहां पे समय नहीं है किसी के पास दोबारा पूछने का। ये 3 कंट्रीज में इस तरह से Okay. हम चाय का And have you दे guys एंजॉय tried टी इन देयर tea ओन butter लेवल डाल के टी में? कह सकते हैं। Because what that is a yeah, yeah, yeah. It's called po cha हाँ because Tibet में people यार ये drink कोई it. वो जो butter होता है that is तिब्बतन made out of टी yak कहते हैं इसे। milk. Yeah, yak milk and that is added to chai and apparently बहुत tasty होता है because I saw याक a review याक उस चाय की, मतलब not review, reaction of उस चाय on YouTube and it was like the people were like it is really nice and smooth and all of that. So I want to drink it. So you should also try it. अभी हाँ, तो तिब्बत जाना पड़ेगा उसके लिए मैडम, बताओ कब चले। कौन कौन चलना चाहता है, जो जो तिब्बत में चाय पीने चाहता है वो कमेंट में हाँ डाले,
सबका स्पॉन्सरशिप अनुदीप देगा यहाँ पे। ठीक है। इसी बहाने इसी बहाने अपने दोस्तों को ले आए, Exact. पहले Yeah. सब्सक्राइब करें, फिर जाके इंस्टाग्राम पे लाइक करें फोटो, और फिर कमेंट करें कि मुझे चलना है, फिर हम कंसिडर Okay. करेंगे आपकी प्ले। ठीक है, पहले आप थोड़ी मेहनत So, पहले like, आप थोड़ी एक मेहनत basic करें, question फिर पूछते हमारी हैं, तरफ से थोड़ा हम कुछ एक्सपेक्टेशन किस रखें। किस को चाय बनानी मोदी आती है? मत बनिएगा सीधा। नहीं, मतलब बहुत सरप्राइजिंग। कोई ऐसा कोई हमें अरे यार, मैं अपने घर में Okay. सबसे छोटा हूँ, Like, तो मेरा तो मैं ना बाय चाय बर्थ पिलाता हूँ ना मतलब चाय लॉ पीता बना हुआ है हूँ, मेरे पे, तो मेरा ठीक इसको है नहीं चाय यार। बनानी आनी चाहिए, यही पिलाएगा माँ बाप को चाय पूरी जिंदगी। Oh. हम्म। लाइक माँ बाप को लगता है कि चाय छोटे बेटे की हाँ, हाथ की चाय। चाय पी ली तो कुछ स्वाद बढ़ जाता है, लाइक कुछ ये सही स्पेशल है। इंग्रेडिएंट ऐड होता है कि भाई वो हाँ ओ भाई, ये तो पीता भी नहीं, पता नहीं क्यों करवा रहा है ऐसा। ये सही है। मक्खन मक्खन लगा रहा है भाई श्रेय तेरे को, जाके चाय बना दे किस उसके लिए। लाइक हाँ ये संकेत है। हाँ तो बेसिकली हाँ, हाँ तो छोटे यहाँ पे भाइयों का तो रहता ही है कि गेस्ट भी आते छोटे हैं, लोग चाय तो इफ बनाते यू हैं, सब रिमेम्बर कह कि रहे हैं गेस्ट सुनने आते में। होंगे तो मम्मी पापा दौड़ाते थे Yeah. कि जल्दी आओ जल्दी आओ, चाय के कप लेकर आओ भाई, चाय के नीचे कोई भी वैस छोटा बेटा या बेटी हो, हाँ वो फंसता ही था उस काम में। हाँ, आई बिस्किट स्टिल जरा खोल देना, हाँ जरा नमकीन फाड़ दे। हाँ, और अगर आप रिलेटिव के घर चले गए तो जैसे अगर बड़े घर पे अगर बहुत सारे लोग हैं, आपकी पूरी बिग फैमिली है, तब तो सब छोटा होना पाप है। बेटा पानी पिला दे। मुझे याद है एक बार गर्मी की छुट्टियों में Oh. मासी की शादी ओके, थी, तो और वहां पे मैं पानी ऋषभ, पिलाते तूने ही रह गया पूरे पॉडकास्ट 2 स्टार्ट महीने। करने से पहले हमसे बोला था कि छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा मतलब है। तू हमसे किसी तो चीज पे। या ऐसा है हमारी फैमिली में। तो बेसिकली हम सो वी विल गिव अ कंटेक्स्ट बिफोर, ओके। सो हम लोग एक नया सेगमेंट हाँ, ट्राई कर रहे हैं Right. विद द पॉडकास्ट। हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं कि वी ट्राई टू विद जस्ट द कॉन्टेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, विद हम कुछ नया ट्रिविया या कुछ एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो लोगों को डिस्कस, कॉज हमारा मेन रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस पॉडकास्ट वाज टू एक्चुअली टॉक अबाउट सम कंफ्यूजिंग टॉपिक्स, Mm-hmm. ओके, जो या तो confusion create करें, okay. So we have brought a conundrum for you today, and Rishabh will take a lead on this, okay. We are going to provide our answers or whatever we think about it, okay Rishabh? तो हाँ, जैसे अनुरोध का पूरा कॉन्टेक्ट था, इसके अलावा इसका महत्व ये है, द आइडिया बिहाइंड इट, कि आप लोग भी अपने कनम्ड्रम हमें बताएं। ये तो हमें एज अ द मोस्ट फेमस कनम्ड्रम ऑफ होल वर्ल्ड, अब इसे ट्रॉली प्रॉब्लम की तरह जानते होंगे, तो मैं इसे एज अ फर्स्ट एलिमेंट, एज अ फर्स्ट कनम्ड्रम, ये सोशल, ये नहीं मोरल कनम्ड्रम में आता है, सॉरी। तो आप भी ये सुनिएगा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक जो भी पूछेगा सवाल, वो लास्ट में अपना जवाब देगा। आप सेटिस्फाई है या नहीं, आप वो भी कमेंट में डाल सकते हो, या फिर आपका सोशल मोरल कैसा भी कनम्ड्रम हो, कोई भी रिडल हो, हमें बताएं और हम उसको फीचर करेंगे अपने एपिसोड में। So here you guys, the first conundrum of our episode, confused the trolley problem. तो हुआ यूं, imagine all three, you all individually, Mm. imagine करो कि आप एक ट्रेन वर्कर हो, जहाँ पे आपका काम है ट्रैक्स को चेंज करना, ठीक है। तो आप वहां पे आपने क्या देखा, एक ट्रैक पे ऑलरेडी ट्रेन आ रही है, इट्स अ बर्जर ट्रेन, वो चले जा Okay. रही है, और जिस ट्रैक पे वो जा रही है वहां पे 5 वर्कर, दे वेयरिंग हेडफोन्स एंड ड्रिलिंग का काम चल रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा ट्रेन आ रही है पीछे। फर्स्ट सिचुएशन ये है। दूसरे पे तो आपका एज ए इंसान, आपने अगर ये देख लिया तो ऑब्वियसली आप सोचोगे, आप ट्रैक चेंज करके उन्हें जिंदगी बचाने की कोशिश करोगे, बट लाइफ इज क्रूअल बेबी। और यहाँ पे क्रुएल्टी कैसे दिखी, क्रुएल्टी ऐसे देखी कि सेकंड ट्रैक पे 3 बच्चे खेल रहे हैं, दे आर द लेबर वर्कर्स, बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, वहां पे वो ट्रैक पे खेल रहे हैं। अगर आपने सेकंड पे दबाया तो वो बच्चे मरना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ट्रेन किसी भी ट्रैक पे गई 1 2 3 4 में से, तो मरना तो पॉसिबल है, पक्का है, मतलब पॉसिबल नहीं है, पक्का है। तो सेकंड में 3 बच्चे, थर्ड में ट्रेन मास्टर विथ हिज असिस्टेंट वहां पे कुछ प्लान कर रहे हैं, दे आर सराउंडिंग कि हाँ भाई ऐसे ऐसे अगले का फ्यूचर डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे ट्रेन मास्टर उसका असिस्टेंट एज अ मेजर पर्सनैलिटी की तरह मैं दिखाना चाहूंगा। तो वहाँ पे एक मेजर पर्सनैलिटी है, उसका असिस्टेंट है, 2 लोग हैं, तो वहां पे खड़े थर्ड ट्रैक पे। चौथे वाले ट्रैक पे एक बंदा लेटा पड़ा है एज अ सुसाइडर, he was waiting, he is actually waiting for a train to come so he can roll over him and he could die. तो आप तीनों के पास ये 4 ऑप्शन है, See, अनुज से शुरू करेंगे, मैं कहाँ आप इसमें जाओगे भाई, स्टार्ट करूंगा क्या कि ऑप्शन फॉर है मी आपका, द क्या करना वैल्यू ऑफ चाहोगे? डेथ
is a big factor. Okay, मैं डिसीजन इस बेसिस पे लूंगा कि जितने कम से कम लोग हों वो मरे, because obviously we have that sort of empathy. ठीक है, we have the empathy toward different humans कि okay, if we can try to save as much as lives as possible, we will try to make that decision. Okay, तो मैं ट्रैक नंबर 3 पे स्विच करूंगा, गिवन द फैक्ट कि ट्रैक नंबर 3 पे एक बंदा है, इस ट्रैक नंबर 4 पे एक बंदा है जो सुसाइड करना चाहता है। हाँ, मैं ट्रैक नंबर 3 पे दो बंदे करूंगा जहाँ पे दो बंदे हैं, गिवन द फैक्ट कि जो बंदा सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिकॉज like the few episodes we तो suicide has a big issue itself. Okay, so I will, मेरे दिमाग में रहेगा कि if that guy gets a chance, okay, he will try to get in a better direction. Okay, तो taking in that in mind, तो मेरे लिए track 4 exist ही नहीं करता है. Okay, I will try to contradict my I will try to converge my options to the first three tracks. Okay, first 3 tracks में मैं हाँ क्योंकि उसको चूज करने से लीस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, और उसको थर्ड चूज किया cause लीस्ट नंबर ऑफ बंदा है। ओके तो यहाँ पे अनुदित का जवाब ये रहा कि क्योंकि वो उसकी समझ ये है कि डेथ का पर्सनल से मतलब डेथ का काफी फैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी पे, तो जितने कम लोग मरे उतना बेहतर है। बट फिर भी मतलब मैं गलत नहीं मानूंगा, ऑब्वियसली मोरल कन्वर्जन में इसमें सही और गलत चीज का जवाब नहीं होगा, बट एक क्वेश्चन होगा जो खुद सोचो कि दे आर इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, वहां पे अगर उनके मरने से इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि रेलवे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर उसका असिस्टेंट मरेगा, तो इस एपिसोड में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो खुद सोचिए इस बारे में कि उनके मरने से उन तीनों के कंपेयर में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं, ठीक है तेरे लिए ये नेक्स्ट Why? See, I will, because किसी ना किसी को मरना ही है, so I will see it as a race towards life. वो बाकी जो 5 लोग हैं, they are actually working really hard in their lives to get somewhere. The बच्चे, they haven't seen anything in their lives, they are still growing up, and they don't even know what is actually coming forward, what is going to happen in their lives. Second, the third track, where we have the master and the assistant, they are working for the betterment of the society, for betterment of the railway station, and that is going to be yield something productive in the future. And the last one, that person has somewhere or the other lost it in his or her life, and that's what my thinking about it is. मतलब उसको उस point of time पे लग ही रहा है, वो वहाँ पे लेटा ही इसलिए है कि उसको मरना है, ठीक है. So I will let him die because if I go by another logic also कि एक इंसान मर रहा है, that then also is true. But देखा जाए in terms of race and productivity towards life, then also he has to die. Yeah, like that. Yeah, like that seems reasonable. Like when I was discussing with Rishabh about this particular conundrum, okay, तो इसमें यही आता है कि moral conundrum basically ये कि इससे एक पता लगता है कि person to person what is their subjective nature about these situations. Okay, like जैसे मैंने बोला, तो for me every person's life is equal. I just I consider it by numbers. Right. Okay. In your end, you are trying to go into much deeper, and you are trying to understand about the product, what is the productive and efficient nature that will come out. Right. ठीक है, okay. अब हम श्रेयस का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं इस पे. हाँ नहीं, मैं शालिका के लिए कोई पॉइंट होगा जो उसको सोचना है अभी, वो ये है कि शालिका तुमने बहुत सही चूज किया कि उसको आखिर में मरना है. मान ले हमने वहां पे कोर्ट पे नहीं गए, हम पहले तीनों में से किसी को मार के छोड़ दिया उसको, तो वो यहाँ से उठ के कहीं पे ड्रॉन करने चला जाएगा, फिर बिल्डिंग चढ़ के कूद जाएगा, तो अल्टीमेटली उसको मरना ही है. मगर शालिका ये बात भी सही है, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात की थी, तो सोसाइटी की वजह से वो बंदा अपनी मर्जी से नहीं लेता, तो जिन कारणों की वजह से वो वहां पे लेटा है ना, तुम उसके एक पार्ट हो, यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यू विल पुल द लेवर टू किल हिम. ये तुम सोचना, तुम्हारे लिए इसमें डिस्कस नहीं करेंगे कि तुम उसका मारना, क्या तुम सोसाइटी से क्या अलग हटके उसको बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो मरने गया था, उसकी वजह से वो एक्चुअली में मर रहा है. He was right in dying. He's not wrong. नहीं डिस्कस नहीं कर सकते, सॉरी नहीं डिस्कस नहीं करो, तुम सोच के रखो, हम उसको अगले एपिसोड में करेंगे.
हाँ, Yes, गिरे yes. आ जाते हैं। Go ahead. मेरा बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सिंपल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जैसे अमृत ने बहुत, शालिका ने, दोनों ने बोला कि 4 ट्रैक पे स्विच करूंगा क्योंकि उसमें सिर्फ एक बंदा मर रहा है। ही सुसाइडल, ही इज नॉट सुसाइडल, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बाकी तीनों का भी सेम फैक्टर नहीं है। अगर तुम मुझे बोलते कि चारों ट्रैक्स पे हर कोई सुसाइड करने बैठा है और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसको मारोगे, तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट उसका होता। बट क्योंकि जस्ट सबसे लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन को मैं मार सकता हूँ तो मैं मारूंगा। अगर ऑप्शन नहीं है मेरे पास और कोई कि मुझे एक ना एक ट्रैक पे स्विच करना ही पड़ेगा उससे, तो 4 ट्रैक पे। Okay. तो इसका भी शालिका जैसा ही है, तो इसका Okay, भी so शालिका जैसे ही और Rishabh, तेरा भी सेम होगा, जो हाँ, तू Rishabh, बैकग्राउंड what is से your सोचता है point कि of view? क्या हम उसको बचा सकते हैं Yes. सोसाइटी जिसके तू मर रहा है। तो फाइनली मेरा, हाँ Okay. हाँ, तो फाइनली मेरा जवाब है, और मेरा जवाब सबसे अमेजिंग है। कॉज मेरे जो बिलीफ है उसको पहले सुनना, उसके Yes. बाद मैं जवाब दूंगा। Yes. Yes. लाइफ एंड डेथ ना प्रोबेबिलिटी पे आता है। डू यू बिलीव इन प्रोबेबिलिटी और नॉट? एज अ मैथमेटिशियन स्टूडेंट, हम चारों इकोनॉमिक्स की है और हम तीनों ने इंजीनियरिंग करी है, तो हम वी बिलीव इन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज के अंदर ये आता है कि इन अ मंथ देयर आर वेरी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम when we Right. when a Yes. male and In female some way, yes. intercourse, then they could give a birth। की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है या नहीं, हाँ या ना? हाँ, हाँ. ओके, हाँ, समवे नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी तो Yeah. है Like I get तू the 30 में से I बटा वो get the कर दे, context. I get. 10 दिन होते हैं, तो भाई अब तू कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में फॉलो करती है या नहीं? ओके, हाँ ठीक है, ओके। उसी के हिसाब से डेथ भी आपकी प्योर प्रोबेबिलिटी पे है। यू नेवर नो कब आप, Yeah. आपने डेथ की तो हर एक बिजार कहानी सुनी होगी। आप जा रहे हो, सांप काट दिया, गिर गया कोई। लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड से वैलेंटाइन पे जा ही रहा था और उसे स्लिप कर गया। देवर 2 पीपल, वो पीछे बैठा हुआ था, वो मर गया और आगे वाला जो ड्राइवर था वो बच गया। तो डेथ इज ऑल्सो नॉन अ प्रोबेबल कॉज 100%। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या थी? सिचुएशन ये था कि जो ट्रेन आ रहा है ना, वो फर्स्ट ट्रैक पे हमारी सिचुएशन इंटर करने से पहले आ रहा था। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी Exactly. वही Yeah. थी जो फर्स्ट ट्रैक पे जा रही थी। जिसका मौत लिखा हुआ था वो फर्स्ट ट्रैक ही था। तो चाहे वहां पे कोई भी हो, वहां पे चाहे कोई भी हो, द नंबर वहां पे जो बंदे खड़े हैं उनसे मतलब नहीं है। द आंसर इज अ फर्स्ट ट्रैक ऑलवेज, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप जा रहे थे उसी पे, आप उसको अगर चेंज करोगे देन यू आर चेंजिंग इट बाय योर ओन हैंड। और इसका कॉज क्या आएगा आपका? अगर इफेक्ट है तो इसका, अगर ये कॉज है तो इसका इफेक्ट आपके पर्सनल पे आएगा कि जब इस पे पुलिस केस होगा तो आप पे नेग्लिजेंस ऑफ नहीं बैठेगा, इस पे आपके मैनस्लॉटर का चार्ज बैठेगा। बिकॉज आपका मर्डर का ये डेफिनेशन है कि योर एनी इंटेंशन एक्शन दैट लीड्स टू समवंस डेथ इज कॉल्ड अ मर्डर। बट अगर आप उसको छोड़ देते हो, इफ यू डू नथिंग, then it comes under negligence under law, which is बट very उससे simple। ऋषभ, Like I get. उससे या ऋषभ फिर तेरे माइंड में भी तो pity रहता वो है कह तू सकते हैं, तू एक बंदे, मतलब क्या कहते 5 बंदों को बचा के एक बंदे को सिर्फ shenanigans, मतलब मतलब मार सकता negligence। था। ओके, हाँ नहीं, तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे तुम चारों ने जवाब दिया ऐसे मेरा ये जवाब है। बिकॉज द आंसर इज ऑलवेज द फर्स्ट ट्रैक whoever sits there, चाहे सुसाइडर हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 50 लोग हो, अगर वहां पे Like I ट्रेन get ऑलरेडी what सेट थी वहां like I जाने के लिए, get तो what आपकी एक्शन Rishabh is किसी trying और to को नहीं say. मार सकते, He's क्योंकि basically वहां पे saying आप कि गलत हो अगर गए। there was अगर ये मैं हमारे पास ऑप्शन नहीं होता to switch the track, Hmm. the probability of them dying would have been 100%. Right. Okay, because that event was supposed to happen. हाँ, But when we are bringing in options, we are actually trying to 100% modify the probability. Hmm. Okay, so it might, so that is, if you are trying to modify the probability, that is a cause. Hmm. Okay, and that cause will bring out different effects. Right. Yeah, exactly. इफेक्ट, और ये वाला इफेक्ट आपके हाथों पे डिपेंड करेगा। मतलब आप उसके पूरे रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते हो तो उसका एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो तो देखेगा कि ट्रेन कहाँ तो से खराब हुई, वो तो डिफरेंट हो आप लोगों जाता ने है। हमारे तो आप व्यूज यहाँ को पे एटलीस्ट आप आप लोगों ने खुद मतलब गिल्टी देखा तो नहीं कि होंगे मतलब किसी हम के मर्डर पे। ऑब्वियसली अगर हमारे आप जो व्यूज हैं वो बहुत सब्जेक्टिव हैं टू आर कंटेक्स्ट। वी विल ट्राई, वी वांट टू नो कि आप लोगों का इस पर्टिकुलर कन्फ्रम के बारे में हाँ, क्या व्यू है। प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कौन सा ट्रैक चूज करते।
and what is the reasoning behind it. We will read every comment that we get on this. We will try to provide a logical feedback as well. And again, coming to this key, like now we have, I think, gone to eight. This is the 8th episode. We want कि अगर आपको episodes अच्छे लग रहे हैं, you are liking the conversation, please subscribe us on YouTube. हमें Instagram पे follow करिए to get regular notifications. हम लोग constantly post भी डालते हैं Instagram पे, which feel like interactive and bring engagement to the page itself. ठीक है. इसके अलावा हम लोग अपना पॉडकास्ट YouTube पे तो डालते ही हैं. YouTube is our main platform. Other than that, Shreyas, it's on Spotify and Anchor, right? Breaker, Google Podcast, Overcast, Radio Public, हर जगह. Apple Podcast, हर जगह है. कहीं भी सुन सकते हो. Yes. So हाँ, तो फिर प्लीज सुनिए, आप इसी एपिसोड को सुनिए, इसके एक एक करके पीछे भी जाए. शुरुआत ये देख सकते हैं, आपकी मर्जी है. 8 एपिसोड है, आपके पास 7 दिन होते हैं, एडजस्ट कर लेना. our biggest concern is we want to know that people are hearing this. We want to know what is their opinion about these topics, so that we can ourselves create further topics, further discussion on this. हमको अपना फीडबैक जितना पॉसिबल है, तो आप अगर आपको कमेंट्स वगैरह में नहीं, तो एक पर्सनल फीडबैक दीजिए हमें. वी विल लाइक टू नो लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट like our conversations and everything. ठीक है. तो इसी के साथ I think we had created a very good interesting episode with different segments. I hope you like this, and we will meet you in the next episode of Confused. Yes, there might be a surprise for you guys, and see you next time. Bye with a surprise. Bye-bye. शायद अगले एपिसोड में इनको कुछ दे.